class? All of you, good afternoon. All are present now. Should we start? So we were doing chapter number 18. Chapter number 18 कर रहे थे हम लोग. ठीक है, waste management. ठीक है, initially we discussed what is waste management. Waste क्या होता है? The thing which is of no use to us anymore. हमको अब वो काम नहीं आ रही है. Then waste management is the technique or the methodology which is adopted to मैनेज दैट वेस्ट. जो भी वेस्ट है उसको हम इस तरीके से मैनेज करें कि वो पोल्यूट भी ना करे हमारे एनवायरमेंट को और एनवायरमेंट का ज्यादा एरिया भी कंज्यूम ना करे. ठीक है, और हार्म ना करे हम लोग को. सो दैट वर द टेक्निक्स दैट विल बी स्टडिंग इन वेस्ट मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? सो नाउ देन वी डिस्कस व्हाट इज सीवेज एंड देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे थे. So we were on page number 290. ठीक है, अब ये बताओ इससे पहले जो भी टॉपिक था उसमें किसी को डाउट है? आपने चैप्टर रीड किया? हैव यू ऑल रेड द चैप्टर? यस और नो? चैप्टर पढ़ा सबने? इज देयर एनी डाउट, एनी टॉपिक, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस और वांट मी टू रिपीट दैट थिंग? हैव यू ऑल फॉलोड टिल हियर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? Should we move ahead to the next topic? Okay, so let's begin. Come to page number 290. Page number 290, all of you. Take out page number 290. सबने खोल लिया page number 290? Yes or no? Okay, so let's start. Waste water treatment. ये मैंने बता दिया था आपको. Waste water क्या है? The water which has mixed a lot of contamination in it, है ना? उसमें खूब सारे कंटेमिनेशन है, लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, सो वी कैन नॉट कंज्यूम दैट वाटर डायरेक्टली. ठीक है, सो वी हैव टू ट्रीट इट, वी हैव टू रिमूव दैट वेस्ट फ्रॉम इट, इजंट इट? तभी उस वाटर को कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर पर्पस. सो द क्लीन वाटर दैट कैन बी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. यहाँ तक हमने कर लिया था उस दिन. दिस इज द क्लीन वाटर व्हिच वी कैन यूज. ठीक है, दैट इज पोर्टेबल वाटर. नाउ सी, there are waste water treatment plants. ये क्या करते हैं? These are the large sections, large areas, you can see large factories जहाँ पे क्या होता है? water treatment होता है पूरा. treatment मतलब various step by steps, those that method is followed. मतलब step by step there is a procedure. Those steps are followed one after the other, and then the final product that we get is the clean water, the water which is free from that contamination. That means that waste, whatever the contaminants that were present in that water have been removed. The water has been purified. Is that clear? So that we can consume it. That is the purpose of wastewater treatment plant. Is that clear? समझ आया क्या? वो आवाज नहीं आ रही? अब देखो स्टूडेंट्स, am I audible? आवाज आ रही है सबको? अब ठीक है संदीप? Is it okay? Should we continue? Okay, so see here, wastewater treatment plant में क्या होगा? Basically there are different process होगा अलग अलग. हर एक में different steps will be there. अलग अलग steps होंगे, and the water, that contaminated water or the waste water has to go through these steps, two different process. Those process can be physical process, chemical process, biologically treat करेंगे. So that means using some living organisms. physical process में हम उसको किसी filter से pass करना, proper machine से pass करना, that is physical process. chemical process क्या होगा? उसको chemically treat करना. That means mixing some kind of chemical in it, some kind of solution in it, उसमें mix करना, फिर दूसरे में mix करना, that is chemical process. तो क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा? जो कंटेमिनेटेड वाटर है, व्हेन आई एम सेइंग कंटेमिनेटेड वाटर मींस टू से इट हैज इम्प्योरिटीज इन इट, है ना? कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है उसमें. सो दैट कंटेमिनेटेड वाटर, दैट वेस्ट वाटर हैज टू गो थ्रू दोज स्टेप्स व्हिच कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. ठीक है, इन स्टेप से वाटर पास होगा एंड देन अल्टीमेटली यू विल गेट अ
clean water which can be used for the purpose of consumption. यहाँ तक समझ आया सबको? Now we'll be reading what are the steps. Steps क्या है इसमें, आगे वो देखेंगे, ठीक है? तो वेस्ट वाटर क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, ये सब समझ आ गया सबको? It's on page number, now I'll be reading the steps on page number 291. Nehal Nupur, okay? Page number 291. Page number 291, okay? So now see, I'll be reading the steps. Steps सारे मैं एक ही read करूंगी, कुछ भी नहीं समझ आए तो पूछना. Once I'll read it and then I'll explain it to you, okay? So first of all, waste water is passed through parallel barred screens. This removes large number of objects like rags, sticks, cans, plastic packets, etc. from it. मतलब इस तरीके से समझो, ये देखो, you can see here in figure number 18.3, ठीक है, bars होंगी जैसे इस तरीके से. Suppose I have arranged these bars like this. Rods हैं या bars हैं, उनको इस तरीके से मैंने arrange कर दिया parallel to each other, somewhat like this. If I am arranging it like this, assume it to be parallel, ठीक है, थोड़ा इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा show, but think it to be in a parallel arrangement. इस तरीके से है. Let us suppose, just for the sake of understanding, इस तरीके से arranged है. अब यहाँ से क्या होगा, water is flowing from this end to this end. आगे water flow हो रहा है, ठीक है, आगे इस तरीके से water flow हो रहा है. तो क्या होगा, जो भी उसमें से बड़े particles जो हैं, ठीक है, जैसे बड़े particles हैं उसमें rags हैं, polythene rags हैं, जो which are big in size, those will be left behind. यहाँ पे अटक जाएगा ना वो, जैसे पानी आ रहा है, पानी तो यहाँ से easily निकल जाएगा, but the waste will be left behind like this. इन obstacle से waste बच जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम बार्स से पास करेंगे ताकि उसमें जो पैकेट्स हैं, प्लास्टिक कैन्स हैं, ये सब these are big in size, तो ये क्या करेंगे, वहीं पे पीछे रह जाएंगे. Okay. Now second step, the waste water is then passed through grinders where the solid waste is reduced in size so that it does not clog up the plant. आगे क्या होगा, सपोज पाइप्स के थ्रू जा रहा है, आगे जहां भी जा रहा है, तो क्या होगा, उसको जो सॉलिड वेस्ट है उसको ग्राइंड कर देंगे. क्या हो गया, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या सबको? संदीप आप ही कमेंट कर रहे हैं. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? संदीप एक बार एक काम करो, अपना नेटवर्क एक बार सेटिंग चेक कर लो. मे बी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लियर विद द साउंड, इजंट इट? एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लो तो आपको क्लियर आवाज आ जाएगी, ठीक है. सो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज, एक बार बार से पास कर लिया, जो उसमें से जो बड़े कंटेमिनेंट्स हैं, बड़ी इंप्योरिटीज हैं, वो तो वहीं पे रुक गई, बार्स के पीछे ही रह गई. अब उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, द स्मॉलर वंस, दोज आर फर्दर ग्राइंडेड. ग्राइंडर में उसको भेजते हैं हम, उसको फर्दर वो ग्राइंड कर देता है. ग्राइंड मतलब बहुत छोटा पार्ट, छोटा साइज कर देगा उस इम्प्योरिटीज का. जो भी उसमें सॉलिड इम्प्योरिटी है उसको वो ग्राइंड करके और छोटा छोटा कर देगा. दैट विल बिकम स्मॉलर इन साइज. द पर्पस हियर इज टू मेक इट सच ए स्मॉल साइज कि वो आगे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसको क्लॉग ना करे. समझ आया? क्योंकि ज्यादा बड़े पार्ट्स होंगे तो आगे के पार्ट्स में वो ऑब्स्टेकल का काम करेगा, रुक जाएगा. सो वाटर विल नॉट बी एबल टू इजिली फ्लो फर्दर, ठीक है. तो क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर देंगे ताकि वो छोटे छोटे सॉलिड जो वेस्ट है वो छोटा छोटा हो जाए. इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज. इज दैट क्लियर? Waste water is then allowed to enter a grit and sand removal tank. Here the speed of waste water is reduced in order to allow sand, grit, pebbles, etc. to settle down. क्या होगा, अब उसके बाद जो उसमें सैंड मिक्स है या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सब जो होते हैं, ठीक है, those pebbles and grits etc. these are allowed to settle down. अब क्या होगा, when water is flowing continuously, so these sand particles will get mixed in it, isn't it? But if you allow it to slower down a bit, उसकी स्पीड आप थोड़ी सी स्लो कर दोगे, तो it will have enough time for the sand to settle down, है ना. सैंड को टाइम मिल जाएगा. अगर आप स्टैंडिंग वाटर रखते हो, सपोज पानी में मिट्टी मिली हुई है, आप उसको कहीं रख दोगे, व्हेन यू लीव इट असाइड फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो क्या होगा, उसमें सैंड
will settle down at the bottom. सैंड क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं. सैंड रिमूवल टैंक में क्या कर रहे हैं हम, वी आर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ वाटर. जैसे स्पीड कम हो जाएगी, द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम. उसमें जो सैंड पार्टिकल्स है, जो पेबल्स है, it will all get settled down in the bottom. Is that clear? So that is the third step. Now the fourth step, wastewater then goes to a large tank called water clarifier. The tank is sloped towards the middle to allow organic materials like feces to settle down at the bottom. अब क्या होगा, थोड़ा सा tilted होगा, slope like tank होगा वो, ठीक है, इस तरीके से, ताकि उसमें और जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. The sludge is removed with scrapers. Here, floatable solids like oil and grease are also removed with a skimmer. The cleared water is so obtained is called clarified water. क्या हो रहा है यहाँ पे clarified water में, सबसे पहले इस तरीके से there is a form of slope in it. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, organic waste will settle down. Now further, when the water moves ahead, what will happen? The oil and the particles, the things which cannot get mixed in the water, जो dissolve नहीं हो सकती, जैसे कि oil है, grease है, that will get separated from it. ठीक है, वो भी separate कर दिया. तो क्या हुआ, सबसे पहले बड़ी impurities separate हो गई, फिर छोटी impurities को हमने grind कर दिया, फिर उसके बाद we allowed the sand to settle down. Sand वहाँ पे settle down हो गई, and then क्या किया हमने, ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें से रिमूव कर दिया, एंड देन वी रिमूव दिस ऑयल एंड ग्रीस लेयर. ऑयल और ग्रीस की लेयर को भी हमने हटा दिया. सो द वाटर obtained is at this step, the water that we obtained at this step is called clarified water. अब बताओ, यहाँ तक समझ आया? आगे की 2 स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक सबको समझ आया? Yes or no? नेहल, नुपुर, क्या नहीं समझ आया? देखो एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ सारे स्टेप, दोबारा सुन लेना जिनको नहीं आया. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाटर को बार्स में से पास किया. बार में से पास होके क्या होगा, वो जो मोटी इंप्योरिटीज है, जो बड़ी इंप्योरिटीज है, द इंप्योरिटीज व्हिच आर लार्जर इन साइज, दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. वाटर यहाँ से पास हो रहा है तो क्या होगा, जो इंप्योरिटीज व्हिच आर लार्जर इन साइज, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड हियर. ठीक है, वो रुक जाएगी ना, वहां से फ्लो नहीं हो पाएगी बार्स में से, so it will be left behind here. Now this water goes to the next stage, the second step, जहां पे क्या होगा, हम solid impurities को grind कर रहे हैं. ठीक है, छोटा छोटा pieces में उसको grind कर रहे हैं. It will get grinded to smaller pieces. क्या होगा वहां पे, जो impurities which are quite larger in size, they will be grinded to small particles, ताकि वो आगे जाके सिस्टम को क्लॉग ना करे. ठीक है. थर्ड थिंग हमने क्या किया, अब सॉइल और सैंड को, सैंड पार्टिकल्स हैं, ग्रिट है, पेबल्स हैं, इनको सेटल डाउन होने दिया. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी अलाउड द वाटर टू बिकम अ लिटिल मोर स्लोअर. ठीक है, द स्पीड ऑफ द वाटर इज रिड्यूस्ड. फ्लो से वो आ रहा था, उसको हमने रिड्यूस कर दिया थोड़ा, सो दैट सैंड हैज इनफ टाइम टू सेटल डाउन. ज्यादा देर वाटर स्लो स्पीड में चलेगा तो सैंड आराम से नीचे सेटल हो जाएगी, जो छोटे छोटे कंकड़ हैं उसमें वो सब नीचे सेटल हो जाएंगे. So in this way, we have removed the sand particles also. Now, in the next stage, we have a slope-like structure. Slope-like structure enables the feces to settle down. तो जो भी organic waste है, वो वहाँ पे settle down हो जाएगा. And lastly, we allow the skimmer to remove the water, oil and grease layer from the water. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे प्लास्टिक कैन्स हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, बड़ी इंप्योरिटीज को बार्स में से सेपरेट कर दिया. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बड़ी जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स जो इसमें से निकल गए, उसको हमने भी ब्रोक इट डाउन, वी ग्राइंडेड इट टू स्मॉलर पीसेस, इजंट इट? दैट वाज द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वी अलाउड द वाटर टू स्लो डाउन सो दैट सैंड पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन. सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, दैट वाज थर्ड स्टेप. फोर्थ में क्या किया, there was a slope-like structure which allowed the organic matter to settle down. अब organic matter भी settle down हो गया, and then we removed the layer of oil and grease from it using a skimmer. That was our fifth step. After this, the water that we obtain after this is called clarified water. अब बताओ यहाँ तक समझ आया सबको? The water that we obtain after this fifth step is called
क्लैरिफाइड वाटर, यस और नो? समझ आया यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, the sludge is transferred to a separate tank where anaerobic bacteria act on it and convert it into methane, carbon dioxide and humus like material. यानी sludge मतलब वो जो organic matter settle down हुआ था ना, उसको sludge बोलते हैं, उसको हमने अलग कर दिया। हाँ, उसको हमने क्या किया, एक separate tank में रखा जहाँ पे anaerobic bacteria means to say the bacteria which have that respiration process जिनका anaerobic होता है, ठीक है, the bacteria which have anaerobic form of respiration in their body, though that organic matter is given to those bacteria, उस पे वो bacteria act करते हैं और उसको convert कर देते हैं किसमें, मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ह्यूमस लाइक मटेरियल। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? Humus is you can say it's a material which is obtained from organic matter. Organic matter को आप decompose होने देते हो तो हमें जो मिलता है उसके बाद, that is humus. वो क्या होता है आपका, ह्यूमस। नाउ ह्यूमस इज वेरी गुड फॉर द सॉइल, सॉइल के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए ह्यूमस बहुत अच्छा होता है। हम उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं सो दैट सॉइल में मिक्स कर देंगे ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाए। सॉइल है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर मिनरल्स उसके पास हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके पास हो ताकि वो प्लांट को मिल जाए आगे फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है बेसिकली वी उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है that is given to bacteria which act anaerobically on it. That means those bacteria have anaerobic respiration in them, मतलब उसको खाते हैं, and the waste that will release from their body, that is in the form of methane, carbon dioxide and humus like substance. ठीक है, this process is called digestion. इसको क्या बोलते हैं, digestion. The digested sludge is dried by spreading on sand beds and used as fertilizer. ह्यूमस बन गया ना वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया दैट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। हम उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो क्या करते हैं उसको स्प्रेड करते हैं एंड वी अलाउ इट टू ड्राई, उसको सूखने देते हैं। इट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है वो। बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस जो जनरेट हो रही है, बायोगैस मीन्स द गैस विच इज जनरेटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर से जो गैस जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड बायोगैस। अब ये बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, वी कैन यूज इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेप में हमको क्या बताया है कि जो हमारे पास जो वेस्ट रिमूव करके जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आया है, पहली चीज तो आपने क्या किया, ये वाटर को क्लैरिफाई कर लिया, यानी वाटर आपका प्योरीफाई हो गया। अब जो वेस्ट जो बचा है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक मैटर का जो वेस्ट आया है हमारे पास, हाउ वी कैन यूज इट फर्दर टू जनरेट न्यू थिंग्स, यूजफुल थिंग्स। अब आपने क्या किया, देखो जो आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो आपने लिया, पानी में से निकाल लिया, तो आपका पानी भी प्योरीफाई हो गया एंड फर्दर यू आर यूजिंग दैट वेस्ट टू जनरेट न्यू थिंग्स, टू मेक फर्टिलाइजर। आपने उससे फर्टिलाइजर बनाया, एक छोटा सा प्रोसेस उस पर किया, आपने बैक्टीरिया को उस पर फीड होने दिया, यानी उस डाइजेशन के प्रोसेस से आपने वो जो वेस्ट था उसको भी आपने यूज कर लिया, इजंट इट? पहला तो आपने क्या यूज किया, उसका आपने फर्टिलाइजर बनाया, ठीक है। सेकंड आपने क्या किया, उसमें से जो बायोगैस निकली उसको आपने एज अ फ्यूल या एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो आपने यूज किया। तो ये क्या हो गया आपका वेस्ट मैनेजमेंट। टेक्निकली दैट वाज अ वेस्ट, इजंट इट? हमारे काम का नहीं था वो, दैट वाज ऑफ नो यूज, but you generated new things out of it. You made it a bit more useful by simply applying the process on it, isn't it? Digestion process उस पे हुआ और वो वेस्ट आगे हमने यूज कर लिया टू मेक न्यू थिंग्स, फर्टिलाइजर बना लिया हमने, उससे बायोगैस बना ली, है ना। So that is the concept of waste management, where you are processing the waste in such a way, you are processing it in such a way that further you can find benefits from it. उससे further आपको benefits मिल सकते हैं, though it is a waste. You were thinking earlier that it is of no use, but still it can be used to make new possible uses out of it, isn't it? So that is waste management. Now see the last point.
एयर इज देन पम्प्ड थ्रू क्लैरिफाइड वाटर, एयर पंप किया हमने, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कंज्यूम द रिमेनिंग वेस्ट। अब क्या किया हमने, एयर पंप करी उस पानी में, उससे क्या होगा, अब वहां पे बैक्टीरिया कौन से आएंगे, द बैक्टीरिया विच कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी in the presence of oxygen। aerobic respiration क्या था, which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic was in the absence of oxygen। तो अब एयर के साथ में उनको पंप कर रही हूँ पानी में, that means air has oxygen, so that air will provide oxygen to those bacteria to carry out aerobic respiration। उस वाटर में जो फर्दर जो छोटा सा वेस्ट थोड़ा बहुत बचा है, उस पे क्या होगा, वो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करके फर्दर उसको डाइजेस्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ आया, यानी वो वेस्ट भी डिकम्पोज हो जाएगा जो थोड़ा बहुत वाटर में अभी भी बचा हुआ है। तो लास्ट में हमने क्या किया कि कंज्यूम ये जो वाटर है हमारा क्लैरिफाइड वाटर है, उसमें हमने बैक्टीरिया पंप किए, द बैक्टीरिया विच डू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So they will convert the remaining waste in water, उस water में जो भी remaining waste it will get converted or to other form which is quite simpler form, ठीक है, which is not that harmful। समझ आए यहाँ तक, सारे स्टेप समझ आए? एक बार इसको देखो, सारे स्टेप को थोड़ली देखो और बताओ क्या पॉइंट या क्या वर्ड क्या नहीं समझ आया, वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, एक बार देख लो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट आई रिपीट इट। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार देख लो इसको अच्छे से। There are 6 points. आउट ऑफ दीज 4 मैंने आपको वापस से रिपीट कर दिए थे, लास्ट के 2 में कुछ नहीं है। आपने क्या किया, ऑर्गेनिक वेस्ट से उसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया डाले, उन्होंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया ह्यूमस में, ठीक है, फर्टिलाइजर हमने उससे बना ली, और जो बायोगैस रिलीज हुई उसको हमने यूज कर लिया एज अ फ्यूल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, जो वाटर है, क्लैरिफाइड वाटर है, उसमें हमने बैक्टीरिया डाल दिए, वो उसमें करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वेस्ट भी उसमें, रिमेनिंग वेस्ट, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू सम अदर फॉर्म विच इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़े। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट फॉर सेवरल आवर्स। ऑब्वियसली इतने सारे स्टेप्स हैं, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया को भी डिकम्पोज करने में टाइम लगेगा, आगे जनरेट होने में, आपको सैंड सेटल डाउन करनी उसमें भी टाइम लगेगा। So it takes hours, and the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge। वो क्या काम करता है, as a sludge काम करता है। About 97% of the activated sludge is water। The water is removed from the top of the sand drying beds or machine। मतलब टॉप पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है हमारे पास, 97% उसमें से स्लज होता है, वाटर केवल बहुत कम पार्ट होगा, वो हम उसमें से अलग से निकाल लेंगे। The sludge is dried and used as manure। अब जो स्लज जो नीचे बच रहा है, जो वो बैक्टीरिया बच रहे हैं उसमें से, वो क्या करेंगे, हम उसको अलग निकाल लेंगे और वो मैन्योर की तरह काम आएगा। मैन्योर इज अगेन the decomposed organic waste which can be directly given to the plants, ठीक है, डायरेक्टली हम दे सकते हैं। The treated water now contains a very low percentage of organic and suspended matter। मतलब उसमें अब organic और suspended matter बहुत कम है। It is discharged into water bodies or into the ground। Now once it is treated properly, that polluted water से आपको clean water मिल चुका है, it is again given to the ground or it is given to the water bodies, ताकि वो वहां पे अब clean water जाए। It does not pollute the water, whether it is ground water or it is surface water like river or anything, तो उसको pollute ना करे वो, ठीक है। Before water is released into the distribution system, it is disinfected with chemicals like chlorine and ozone। देखो अब यहाँ पे क्या किया लास्ट में, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स टू से कि वो प्रोसेस जिससे कि आपके घर पे पानी आ रहा है डायरेक्टली, है ना, जो डायरेक्ट वाटर आता है, सप्लाई वाला आता है, वो वाटर आने से पहले क्या होगा, लास्ट स्टेप, उसको केमिकली हम ट्रीट करेंगे, उसमें क्लोरीन या फिर ओजोन डाल के क्या करेंगे, उसको और फर्दर प्योरीफाई कर देंगे ताकि इट बिकम्स पोर्टेबल, ठीक है, आपको इजीली कंज्यूम कर सको आप डायरेक्टली। तो उसमें क्या किया हमने, केमिकल्स डिसॉल्व कर दी, क्लोरीन और ओजोन, ठीक है, उससे वो क्या होगा और क्लियर हो जाएगा वाटर और प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी, इसमें क्या देखा आपने, हमने तीनों स्टेप यूज किए,
We used physical method, we used chemical methods, we used biological methods. कैसे? फिजिकल मेथड में क्या किया, हमने उसको बार में से पास किया, हमने उसको स्लोप पे से पास किया, हमने उसको थोड़ी देर स्लो कर दी स्पीड ताकि सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाए. दैट वाज फिजिकल प्रोसेस. सेकंड, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या किया, वी इंट्रोड्यूस्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, वी इंट्रोड्यूस्ड एरोबिक बैक्टीरिया, है ना. बैक्टीरिया यूज कर करके हमने क्या किया, वेस्ट को डिकम्पोज कराया. isn't it? So this is the way we are using biological methods in it. थर्ड नंबर, केमिकल मेथड्स हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हमने क्लोरीन डाल दिया, ओजोन डाल दिया ताकि वो फर्दर प्योरीफाई हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम आगे उसको भेज सके. सो जो इनिशियली ये लोग बोल रहे थे, वी आर यूजिंग फिजिकल मेथड, we are using chemical method, we are using biological method, all these three methods are employed in it, isn't it? So this is the technique of separation of waste or the removal of waste from water. Is that clear? यहां तक समझ आया? नुपुर, नेहल, ये जो आपका टाइम टेबल है ये नई क्लासेस का है आपका. 1 अक्टूबर से क्लासेस जो लगेगी वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगेगी. ठीक है, दिस इज नॉट योर एग्जाम टाइम टेबल. ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया यहां तक? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़े. इसके बाद है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस ऑन पेज नंबर 293. ये प्रोसेस को ही यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रखा है. देखो, अभी जो हमने पढ़ा था, बार्स में से सेपरेट किया तो वाटर में क्या हो गया, इम्प्योरिटीज वहां रुक गई, फिर हमने ग्राइंडर किया यानी छोटी इम्प्योरिटीज, है ना. सेकेंड वाला जो स्टेप था वहां पे इम्प्योरिटीज को हमने छोटा कर दिया. देन इन थर्ड स्टेप वी अलाउड द वाटर टू गेट अ बिट स्लोअर डाउन सो दैट sand will settle down here. Now it is given to primary ये clarifier where organic waste settle down. Organic waste ये slope like structure में settle down हो जाएगा तो क्या होगा, further you can send it ऊपर यहाँ पे भेजेंगे. यहाँ पे क्या हो गया, ये clarified water. अब इसके बाद यहाँ पे हम एयर कंप्रेसर से क्या क्या डालेंगे, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया. दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया वो क्या कर रहे थे, फर्दर जो उसमें वेस्ट था उसको वो खत्म कर रहे थे. ठीक है, और जो स्लज जो बन रहा है उसको हम आगे एज ए मैन्योर यूज कर देंगे. इज दैट क्लियर क्लास? समझ आया ये वाला डायग्राम भी सबको? जो पीछे जो स्टेप्स हैं उसको ही डायग्रामेटिकली इन्होंने आगे समझा रखा है. क्लियर और नॉट? डायग्राम सबको समझ आ गया? ठीक है, संदीप बुक में देखो, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो बुक में देखो ना. ठीक है, ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे पेज नंबर 293. पेज नंबर 293 ऑल ऑफ यू. बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वो प्रैक्टिसेस विच वी शुड फॉलो एट अ डोमेस्टिक लेवल. हमारे हाउस होल्ड में जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं सो एज टू मैनेज वेस्ट मोर एफिशिएंटली, है ना. वो है आपकी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस. व्हाट आर दीज? तीनों पॉइंट्स देखेंगे. You should be responsible citizen and take every step to dispose waste properly. Following are the ways. क्या करना है? पहला क्या है? Food, especially Indian food, contains lots of fat and oil. The leftover food items should not be thrown down the drain because they can choke the pipes when they harden. That means जो हमारे जो food waste है, जो भी हम खा के जो हमारा waste जो बच रहा है, डोंट अलाउ इट टू एंटर द ड्रेनेज सिस्टम. यानी आप उसको, जो आपकी थाली में जो सपोज खाना बच रहा है उसको आप पहले ही डस्टबिन में डाल दो, उसको डिस्पोज इट एट द फर्स्ट प्लेस. आप उसको अच्छे से डिस्पोज करोगे तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना. Had it been the situation where you are allowing this water to enter the drainage system, आप ड्रेनेज में एंटर होने दे रहे हो, सिंक में डायरेक्ट डिस्पोज कर रहे हो, so ultimately it will choke the system. जो आपकी पाइप्स है उसको वो चोक कर देगा, है ना, उसको क्लॉग कर देगा वहां पे. सो दिस इज द वे वी शुड सेपरेट इट एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. पहले ही उसको सेपरेट कर दो. ठीक है, whatever the leftover food items are, these when thrown in open pipe drains block the soil pores, thereby decreasing its effectiveness to filter water.
आप बाहर अगर उसे फेंक रहे हो डायरेक्ट तो क्या होगा, सॉइल की जो पोर्स है उसको वो बंद कर देगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू फिल्टर वाटर क्लियरली, ठीक है, प्रॉपर्ली वो फिल्टर नहीं कर पाएगा वाटर को, क्योंकि उसकी पोर्स तो आपने बंद कर दी उसके ऊपर वो वेस्ट डाल के, है ना। Therefore, such waste should be thrown in dustbins only. It's better you throw it in the dustbin. ठीक है, डायरेक्ट डस्टबिन में फेंको ताकि ना आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होगा ना सॉइल का पोर्स बंद होगा, ठीक है। Second point, solid waste such as used tea leaves, food remains, plastic bags, soft toys, cotton and sanitary towels should not be thrown down the drains. Direct drains में नहीं फेंकना चाहिए उन सबको, ठीक है। Such waste block the drains, they reduce free flow of oxygen and thus slow down the process of degradation. That means if you throw these waste directly into the drains, तो क्या होगा, वो डिग्रेड होने में आगे प्रॉब्लम आएगी, वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देगा और आगे जाके क्या होगा, इट विल नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू गेट डिग्रेडेड, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, आगे डिग्रेड नहीं हो पाएगा। डिकम्पोज क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसपे जो एरोबिक बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो दे कैन नॉट डू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा, इस तरीके से वहां पे उनको देयर विल बी लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सो द डिग्रेडेशन प्रोसेस विल स्लो डाउन, बहुत स्लो हो जाएगा एंड इट विल टेक many hours or you can say many days for that waste to get decomposed or get degraded. Is that clear? Children, don't comment about the timetable right now while I'm teaching you the topic. ठीक है, जब टॉपिक कर रहे हैं so don't comment unnecessarily. मैं सब बता दूंगी आपको. Okay? Various chemical products such as medicine, motor oils, paints, grease, oil machines, machine oils, and insecticides may kill water purifying microorganisms and hamper the degradation process. These should not be thrown down the drain. मतलब जो आपकी medicines होती हैं या आपके जो oils होते हैं जो आप जैसे इसमें use करते हो, suppose motor oils है, आपका grease है, paint है, ये सब चीजें अगर आप कहीं पे directly throw कर रहे हो, so what will happen, water में ये जो waste killing bacteria होते हैं जो, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। वाटर प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको क्या करेगा, वो खत्म कर देगी, दैट व्हाटएवर द मेडिसिन इज, व्हाटएवर दैट पेंट इज, वो उसको खराब कर देगा। तो क्या होगा, आपका वाटर जो उसमें जो वेस्ट है वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो ग्राउंड लेवल पे आपका प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, व्हाई शुड वी फॉलो देम? ठीक है, क्योंकि वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देगा, कभी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देगा, कभी चोक कर देगा सिस्टम को। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी एलिमिनेटेड बाय फॉलोइंग or by changing a few habits in our day-to-day life, isn't it? Just throw the whatever the food waste is, just throw it in the dustbin instead of throwing it in the sink itself directly, and don't allow the waste to be littered here and there on the soil, because it won't allow the water to be filtered properly. वाटर फिल्टर नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वाटर वहां पे फिल्टर नहीं हो पा रहा है ना। सो दैट दोस प्रॉब्लम्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग अ फ्यू हैबिट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इज दैट क्लियर क्लास? यस और नो? हैव यू ऑल फॉलोड टिल हियर? समझ आ गया सबको? दिस इज द लास्ट टॉपिक, सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल, दैट विल बी टुमारो, I mean in the next class. ठीक है, टाइम टेबल में फ्री का ये मतलब है कि अर्लियर यू यूज टू हैड क्लास एट दैट टाइम ना, जहां पे फ्री लिखा है उस टाइम पे क्लास नहीं है अब आपकी। ओके, और इसमें कोई डाउट है? सो फार whatever we have discussed, the purification system, water, waste water treatment plant, anything? Okay, so we'll do the next topic in the next class. Till then, all of you have a nice day. Okay, thank you class.